So very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video we'll be talking about, we'll be doing this tax, okay. So this definition I have been already told you to write in a copy, but if you don't have written, then you see rent receivable, okay. These are the things that we are going to need in the upcoming exercises, the question answer, whatever the question answer we have been going to do. So these meanings have been there, so you must understand this, okay. So first one is rent receive or receivable. That the basic thing. जो आपको रेंट मिलने वाला है उसको बोलेंगे रेंट रिसीव्ड. इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, राइट, इफ यू हैव अ हाउस and it has been rented, so at the end of the year you will receive a rent, so that is what rent receive or receivable. And after that you have a municipal value also. What is municipal value? Basically it is an estimation by the municipality that the property of yours will going to fetch you what amount of money, okay. That is what municipal value. Basically बोलने का मतलब है म्यूनसिपैलिटी भी आपका क्या करती है, कैलकुलेशन करती है कि एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका प्रॉपर्टी कितना रुपया कमा सकती है, या आपका जो जगह है वो कितना रुपया कमा सकता है, वो लिखा हुआ देखिए. फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग टैक्स ऑन द शेयर ऑन द हाउस होल्डर्स म्युनिसिपल अथॉरिटी मेक इंडिपेंडेंट असेसमेंट टू डिटरमाइन द लीटेबल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, and based on such assessment they charge municipal taxes as a certain percentage of the leatable value. In some metropolis like Mumbai, Delhi, Calcutta and Chennai, its municipal authority charge the tax on property after allowing 10% rebate on the municipal value to provide for repair and maintenance of the property for the purpose of income tax. However, such rebates are to be added back to determine the gross municipal value. जो भी ये म्यूनसिपैलिटी रहती है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता रह गया, चेन्नई रह गया, दिस फोर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लेस, वेरी मोर बिग, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी आपको 10% का डिस्काउंट भी देती है, और वो आपको बाद में ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू में आपको ऐड करके दिखाना पड़ता है, ठीक है. इतना आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद है फेयर रेंट. फेयर रेंट, व्हाट इज द फेयर रेंट? फेयर रेंट इज द रेंट which a similar property may fetch in a similar locality. The rent which a similar property may fetch in a similar locality. The income tax department may in fact consider transactions entered into by other property holders to judge the earnings potential of a particular property. फेयर रेंट क्या रहता है? बेसिकली फेयर रेंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आसपास में आपका घर, मतलब आसपास में वही घर के आसपास भी बहुत सारे रेंट वाले हाउस हो सकते हैं जहां पर रेंट 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 है, तो एक एवरेज निकाला जाएगा और वही एवरेज आपका भी कंसीडर आप कर सकते हो. तो आप भी अगर कोई एरिया में दिस हैपेंस एक्चुअली, इफ यू गो टू ए सिटी अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी द रेंट इज ऑल्सो सेम, ओके. आप अगर कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जा रहे हो, अगर वहां पर अगर कोई आपको फॉर एग्जाम्पल आपने 1 BHK फ्लैट देखा और उस 1 BHK फ्लैट अगर आप रेंट में रह रहे हो, अगर वो 7,000 बोल रहे हैं, तो उस एरिया में जो भी आपको 1 BHK होगा उसका वैल्यू मोर और लेस 7,000 ही होगा. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोर और लेस 7,000 ही रहता है, ज्यादा कम या ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होता. तो ये क्या है? दिस इज द एक्चुअली फेयर रेंट, ओके. और द स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या है? ये रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से ये एक बोर्ड है जो कि एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करती है कि कोई पर्टिकुलर जगह का कितना रेंट होना चाहिए. In case of property is covered under the Rent Control Act, the reasonable rent that an owner may get from the property cannot exceed the rent as determined under the Rent Control Act. The standard rent is therefore an important factor to determine the annual value of a property. ये भी रहा कुछ सारी बातें. अब हमें कुछ समझना है how we are going to do the question answers from this point of view. From this point you must understand this, okay. First we have to find out the reasonable expected rent of the property according to the section 23(1)(a) which is higher of the following. आपको देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको फेयर रेंट दिया रहेगा, आपको स्टैंडर्ड रेंट भी कोई केस में दिया रहेगा, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल आपको दो चीज पता है, क्या क्या पता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. अगर आपको ये these two values if you are known to you, then you have to select whichever is higher. That is step 1. क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको देखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है या फेयर रेंट ज्यादा है. अगर दो चीज पता है तो
कभी कभी स्टैंडर्ड रेंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड रेंट दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड रेंट भी कंपैरिजन आएगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी पूरा नहीं बताने वाला, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दो चीजें, सिर्फ तीन चीज भी हो सकता है सर, स्टैंडर्ड रेंट भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट का अभी मैं नहीं बता रहा आपको, पहले ये दो चीज समझ जाओ, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट भी समझ में आएगा आपको। जब दो चीज गिवन है, क्या और क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, तो जो ज्यादा रहेगा इन दोनों में से वो आने वाला है, ठीक है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपका फाइंड आउट द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, आपको कितना रेंट मिलेगा या मिल चुका है, ये स्टेप 2 है। डिडक्ट द म्युनिसिपल, और स्टेप 2, और ये दोनों में से आपको कंपैरिजन करना है, ये दोनों में से जो कंपैरिजन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद स्टेप 3 होगा म्युनिसिपैलिटी टैक्स आपको निकालना है, उसके बाद आपको उसको माइनस कर देना है, ठीक है। Deduct the municipal tax actually paid by the owner during the previous year. The remaining amount shall be the net annual value of the let out property for the purpose of municipal tax, which means levied by the municipal authority or local authority. Tax levied by a local authority, municipality in respect of the property also includes services taxes levied by such property, water tax, conservancy or halak-khor taxes, education cess, service tax levied on such property, water tax, conservancy imposed in respect of such property, taxes imposed by any other property authority which is collected by the municipality। और भी बहुत सारे टैक्सेस हो सकते हैं जो कि म्यूनसिपैलिटी उठाती है और जो आपको देना पड़ता है, ठीक है। सो you see problem number 19. In this problem number 19 you see Shri Alak Sen is the owner of a house in Calcutta, okay. He let out his house to a tenant for 2,000 per month. The municipal value of the house is 20,000 per month. During the year, he pays municipal tax of 2,000. Find out the annual value of the house for the assessment 2018-19. So this thing is very important. आपको ये लिखना पड़ेगा बार बार, computation of annual value of let out house property। नाम दिया है तो नाम लिख दीजिएगा। For the assessment year 2019-20 relating to the previous year 18 and 19. If there is no name is mentioned there, so you have to write ... But if a particular name has been mentioned, तो आपको नाम लिखना जरूरी रहेगा। Assessment year 19-20 और previous year है 18-19। पर आपका अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 20-21 और ये हो जाएगा 19 and 20, ओके। ये आपको एग्जाम में लिखना है, अभी नहीं, ठीक है। अभी जो गिवन है वही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। असेसमेंट ईयर 18-19 बोल रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर होना चाहिए। असेसमेंट ईयर 19-20 हो जाएगा, 18-19 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तो ठीक है। अब मेन चीज में आते हैं, इधर स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं किया हुआ है, आप ऐसे एक बार कर लो, पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके करेंगे। तो इधर देख लीजिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बीइंग हायर ऑफ, आपको कंपैरिजन करना है दो चीज की में। आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 लिख दिया हमने। रेंट रिसीव कितना बोले 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ मतलब एक महीने का 2,000, तो साल का कितना 24,000 लिख दिया। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू अल्टरनेट बीइंग हायर, इन दोनों का में कौन ज्यादा है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में है रेंट रिसीव ज्यादा, तो रेंट रिसीव बाहर चला गया। उसके बाद लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, जो म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है तो वो हो जाएगा माइनस, तो आ गया आपका 22,000। वैसे यहाँ पर है, उसके बाद देखिए Sri A. Roy is the owner of a house in Calcutta, in Kolkata. He let out the house to his friend for 2,000 per month. Similarly, house in the locality can fetch a rent of rupees 2,500 per month, and the net municipal value of the house is 18,000 per annum. Municipal tax paid during the year was 10%. Compute the annual value of the house. Okay. तो हम लोग निकाल रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हाउस है ये तो कितना 10% पेमेंट हो चुका है, मतलब जो आपको ये जो म्युनिसिपल वैल्यू दिख रहा है 18,000, ये 18,000 में आपने 10% पेमेंट कर दिया, तो इसको तो आप राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपने क्या किया है, 18,000 को 100/90 कर रहे हैं इधर पे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 18,000 है वो उसमें 10% ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसलिए राउंड ऑफ करने के लिए 100/90 किया। तो कितना हो गया 20,000 का 20,000। रेंट रिसीव कितना है, इधर रेंट रिसीव है हमारा 2,000, तो 2,012 that is 24,000, and fair rent is also given to us, okay। लिखा हुआ है सिमिलर हाउस इन द लोकेलिटी कैन फेच अ रेंट ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ। तो फेयर रेंट कितना हो जाएगा 2,500 into 12 that is 30,000। अब ये तीनों में से हाईएस्ट लेना है, तो तीनों में से हाईएस्ट है फेयर रेंट, तो हाईएस्ट ये आ जाएगा। और उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स 10% है, ये 10% निकल जाएगा 18,000 के ऊपर।
तो हो जाएगा 28,200. दिस इज योर नेट एनुअल वैल्यू. So similar to this, question number 21 is also there. 22 is also similar to this. You can do this also, and 23 also. Okay. So try to do these questions, okay, and the remaining question I will be helping you. Okay. Thank you.